Welcome to our YouTube channel where we explore strategies for success in the world of studies. In today's video, we are diving into a topic, a detailed and intensive process. Research, as we understand, is not just a pursuit of knowledge, but a rigorous endeavor to discover the truths that lie beneath the surface. First, problem identification. हर एक रिसर्च किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है. All starts with a question, a curiosity, something that sparks curiosity. यह समस्या कभी किसी एजुकेशनल अंतर से तो कभी समाज के व्यावहारिक मुद्दों से जुड़ी होती है. Remember, a well-defined problem is half the research done. Second, literature review. Here, you dive into the ocean of existing knowledge. इसमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं और डॉक्यूमेंट करता है पिछले रिसर्च की जानकारियां. It's crucial to acknowledge what has been done to identify where we can contribute. Third, formulating hypotheses. Then we come to formulating hypotheses. ये hypotheses हमारी रिसर्च की दिशा निर्धारित करते हैं. They are the guiding lights, जो हमें सही राह दिखाते हैं and need to be crafted with precision. Fourth, research design is a blueprint. यहाँ हम तय करते हैं कि रिसर्च पेपर कैसे किया जाएगा, किन टूल्स का उपयोग होगा. This step decides how we collect our data, how we analyze it, and ultimately, how reliable our findings will be. Fifth, data collection is the field work of research. यहाँ हमारी थ्योरीज का प्रत्यक्ष संपर्क होता है वास्तविकता से. Each data point collected is a piece of the puzzle, and we must ensure each piece fits perfectly. Sixth, data analysis. Once we have our data, we move to data analysis. डेटा को संगठित करना, उसका विश्लेषण करना और पैटर्न्स की पहचान करना. This is where we start to see the fruits of our labor. Seventh, interpretation of results. This stage में हम परिणामों का अर्थ समझते हैं. We ask, what does this mean in the context of our hypotheses? It's about making sense of the numbers and trends. 8, reporting findings. It's essential to present your research in a coherent, clear, and scholarly manner. Your research paper is a reflection of your hard work. It happens. 9, drawing conclusions helps us tie everything together. यहाँ हम निष्कर्ष निकालते हैं और समझते हैं कि हमारे रिसर्च पेपर ने क्या उत्तर दिए हैं. 10th, recommendations for future research. We make recommendations for future research. क्योंकि हर रिसर्च पेपर कुछ नए द्वार खोलती है, नए सवाल जगाती है. It's about setting the stage for those who will follow in our footsteps. Research is not just about finding answers. It's also about asking the right questions. एक अच्छा रिसर्च पेपर करता वही होता है जो सटीक प्रश्न पूछे और उनके उत्तर विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करे. As we embark on this journey of research, let's be diligent, ethical, and most importantly, curious. Happy researching. Objectives. एक, इवैल्यूएट करना कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्या रोल है करियर एडवांसमेंट में एमएनसीज में भारत में. 2, असेस करना कि हिंदी प्रोफिशिएंसी कितनी महत्वपूर्ण है एम्प्लॉयज के लिए जो एमएनसीज में काम करते हैं भारत में. 3, एनालाइज करना कि बिलिंगुअल प्रोफिशिएंसी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी का क्या प्रभाव है करियर प्रोग्रेशन पर. 4, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के लिए कि कैसे वे अपनी लैंग्वेज स्किल्स को सुधार सकते हैं करियर डेवलपमेंट के लिए. एनालिसिस. यूज करना स्टैटिस्टिकल टूल्स को सर्वे डेटा को एनालाइज करने के लिए और एस्टैब्लिश करने के लिए कोरिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और करियर एडवांसमेंट. परफॉर्म करना थीमेटिक एनालिसिस ऑन द क्वालिटेटिव डेटा जो गैदर किया गया है इंटरव्यू से, ताकि समझा जा सके कि किस न्यूएंस तरीके से लैंग्वेज स्किल्स इम्पैक्ट करते हैं करियर प्रोग्रेशन पर.
मेथडोलॉजी। 1. लिटरेचर रिव्यू। Conduct a comprehensive review of existing literature on language proficiency और career advancement, 70 से 30 के रेशो में इंग्लिश और हिंदी के लिए। 2. सर्वे। डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करना एक सर्वे एम्प्लॉयज को जो वेरियस MNCs में काम करते हैं भारत में, ताकि क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा किया जा सके उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और करियर प्रोग्रेशन पर। 3. इंटरव्यूज। कंडक्ट करना सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज HR प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स के साथ MNCs में, ताकि क्वालिटेटिव इंसाइट्स मिल सके कि कैसे लैंग्वेज स्किल्स को परसीव किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है करियर एडवांसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। 4. केस स्टडीज। एनालाइज करना स्पेसिफिक केस स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने या तो बेनिफिट किया है बिलिंगुअल प्रोफिशिएंसी से या फिर फेस किया है चैलेंजेस को ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी। रिकमेंडेशंस। ऑफर करना स्ट्रैटेजीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सजेस्ट करना इनिशिएटिव्स को एम्प्लॉयर्स के लिए ताकि वे सपोर्ट कर सके लैंग्वेज एजुकेशन और बाइलिंगुअलिज्म को वर्कप्लेस में। 1. चूज अ क्लियर एंड रेलेवेंट टॉपिक। अपना टॉपिक साफ और रेलेवेंट चूज करो जो आपके फील्ड ऑफ स्टडी से मैच करता हो। ये भी जरूरी है कि टॉपिक आपके इंटरेस्ट और करियर गोल्स के साथ अलाइन हो। 2. कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू। अपने टॉपिक से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लिटरेचर को ढूंढो, जैसे कि एकेडमिक पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स और दूसरे रेलेवेंट पब्लिकेशंस। इस प्रोसेस में मेन थ्योरीज, मेथडोलॉजीज, फाइंडिंग्स और एग्जिस्टिंग रिसर्च में गैप्स को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3. आइडेंटिफाई की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन थ्योरीज, मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करो और समझो कि ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुए हैं। 4. एग्जामिन रिसर्च मेथडोलॉजीज। पिछले स्टडीज के मेथडोलॉजीज को देखो और समझो कि अलग-अलग रिसर्च मेथड्स के क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। 5. एनालाइज प्रीवियस फाइंडिंग्स। एग्जिस्टिंग रिसर्च से मेन फाइंडिंग्स को समराइज करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, इनकंसिस्टेंसीज देखो और लिटरेचर में क्या गैप्स है ये समझो। 6. डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सोर्सेस की क्रेडिबिलिटी और आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, अजम्पशंस को क्वेश्चन करो और ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करो। 7. एंगेज विद एक्सपर्ट्स एंड पीयर्स। अपने प्रोफेसर्स, फील्ड के एक्सपर्ट्स और फेलो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। रेलेवेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करो। 8. अप्लाई प्रैक्टिकल नॉलेज। जो थियोरेटिकल नॉलेज आपने रिसर्च से गेन किया है, यूज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से रिलेट करो और बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करो। 9. प्रैक्टिस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने टॉपिक पर समरीज, क्रिटिक्स और एसेज लिखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करो। अपने आइडियाज को क्लियरली और कंसाइसली कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करो। 10. सीक फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट। अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन पर मेंटोर्स और पीयर्स से फीडबैक लो और अपने लर्निंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करो ताकि आप अपने आप को और बेहतर बना सको।